हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका यूपीएससी स्टोरीज। आज हमारे साथ है निशा ग्रेवाल। शी इज एन आईएएस of the 2021 batch. She's a very recent IAS and she comes from a small village in Bhiwani, Haryana. She was an All India rank 51 in her UPSC examination. So welcome Nisha to our program, and it's really a pleasure to have you on our show. Thank you, Masruji. Okay, Nisha. So, I'm really excited to know because you're one of the youngest IAS, right? You became an IAS in the age of 23, and it was really inspiring to know that at such a young age that you were qualified for a highly reputed public service examination. So, how do you feel on your success in becoming really an IAS at this age? So it has been a difficult journey, and so I considered it as an accomplishment that I cleared this exam at an early age. So yes, it feels accomplished. I mean, a sense of achievement is there because there has been a lot of hard work, not of just me but my whole family. So right now I'm very happy, very excited to travel this civil service career and what lies ahead. And current posting is also very interesting. So there is so this process. So the most interesting thing about is that the process of learning never stops. So again, currently I'm assistant collector in Vaishali district, undergoing trainee under my DM. So that is also a very interesting assignment. So yes, it's a journey in which you get to enhance yourself every day. So just to let our viewers know, Nisha is from the Bihar Kader, and she is currently posted, as she mentioned, as Assistant Collector, Vaishali District, Bihar. So Nisha, was being an IAS your childhood dream? It was never planned or imagined since childhood. But yes, my grandfather was my mentor teacher, so we used to study together. Sometime occasionally we had discussion that what to do ahead, लेकिन it was all very informal. ऐसे ही मजाक मजाक में हम ऐसे कुछ discuss करते थे, ये कर सकते हैं. So there was all a sky full of opportunities, and he never stopped me growing. So whatever I want to do, he supported me, my family, my father, mother, brother, everybody supported me. So yes, till 12th I had maths. I mean PCM, and then because after 12th we formally decide what stream do we want to choose. So this is our Indian system, education system. So at that time I had option either to go for judiciary because I was not much interested in engineering. So judiciary or civil service, but then I got into Miranda, and then I chose political science and history. So it has been an organic decision rather than a planned one. But at later stage, as we approach the eligibility and getting yourself to appearing for this exam, the preparation becomes more structural, more regular, more scheduled. But it was never a childhood dream. It was all very natural. So my grandfather used to say one step at a time. तो जैसे अभी हम 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन इवेंचुअली विल गो फॉर 10th का बोर्ड्स, फिर 11th को, या हम 5th क्लास में भी तो 5th में अच्छा करेंगे, या 6th क्लास के बारे में सोचेंगे. 5th क्लास में आप अपने बच्चों को ये मत कीजिए कि हमें वो बनना है. उस समय उन बच्चों को as much as freedom you can give. So that has been my environment जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ. तो it was never all decided. निशा, जैसे आपने बोला एंड आपने बताया कि यू कम फ्रॉम अ मतलब स्मॉल टाउन ऑफ भिवानी, एज वी सेड. आपकी स्कूलिंग भी छोटी जगह से हुई थी. आई मीन, इफ आई टॉक फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, बट जब आप दिल्ली में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस आए, तो क्या वो आपके लिए बड़ा चेंज था? हाउ डिड यू काइंड ऑफ फेस दैट, एंड व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट? So मैम, एक तरीके से ऐसा लगा कि पोन्ड से ओशियन में आ गए हैं. कि पहले बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था, कि बहुत लिमिटेड कंपटीशन होते थे. बट द वन थिंग वहां पे ये था कि बहुत टीचर्स अच्छे मिले मुझे, बहुत अच्छे. तो उस सिटी में भी मैंने जितना एक्सप्लोर कर सकती थी मैंने करा. मैं अपने टीचर्स को परेशान करती थी कि मुझे इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में जाना है,
या मुझे स्टेट में इस कंपटीशन में जाना है, मैं खुद से बताती थी, या उनको पता लग जाता है कि दिस स्टूडेंट या दिस किड इज इंटरेस्टेड, तो दे देमसेल्फ टेल कि हाँ यहाँ पे साइंस क्विज है, यहाँ पे ऐसे कंपटीशन है, यहाँ पे डिबेट कंपटीशन है, तो आई यूज्ड टू गो देयर आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि उस स्मॉल टाउन में अपॉर्चुनिटीज कम थी, वहां पे भी जितना हो सका। कल ही मैं टीचर्स डे पे एक टीचर से बात कर रही थी, तो ही सेड कि अभाव में प्रभाव डालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितने आपके पास फैसिलिटीज हैं, उससे आप बेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और मिस रुचि, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते थे कि वहां से इतने अच्छे बच्चे भी निकले थे। मतलब आज भी गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है और हम निरंतर इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल या बड़ी बड़ी मेट्रो के बच्चे ही, आई मीन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, माई बैचमेट्स कम फ्रॉम वेरी आई मीन रिमोट एरियाज। Yes. So, I mean, it's not something I should boast about कि इतना कमी में भी हमारे वहां पे जितना था, it was very sufficient for me. तो और आज भी मैं अपने I'm very proud of my district that it gave me that facilities. So yes, but compared to college में आके altogether different experience, because in our batch there was students from every, I mean, all of India. So फिर आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, इवेंचुअली यू गेट टू नो डिफरेंट पीपल। तो थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग अभी हर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव भी हो रही है, तो वो चीज थोड़ा ये कि मेट्रो के बच्चों को थोड़ा वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बहुत पहले पता लग जाता है। बट एवरीथिंग इज प्रोज एंड कॉन्स, बट यस, हर किसी की अपनी जर्नी चार्ट होती है, एंड देयर इज नथिंग कि उसका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा बोला, बट आई थिंक बस वो होता है कि कभी कभी बच्चे जहाँ ऐसा लगता है कि चकाचौंध की वजह से लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि बड़ी जगह आके। सो आई थिंक यू टेकन इट वेरी पॉजिटिवली एंड यू ग्रोन विद दैट रादर देन एक्चुअली just restricting yourself. So I think that has been positive. So every school, every institution जहाँ पे मैं पढ़ी, उसका मेरा कुछ पार्ट उस इंस्टीट्यूशन में भी गया, लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट मैं अपने साथ लेके आई। So it's a two-way journey, कि स्कूल भी आपके साथ ग्रो करता है, कॉलेज भी आपके साथ ग्रो करता है, लेकिन आप उससे ज्यादा ग्रो करते हो। तो मिरांडा में भी मैंने भिवानी के कुछ एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी, और वाइस वर्सा। That's true. And आप मतलब you've always been saying that your grandfather is like your mentor, teacher, and things like that. So मतलब how has he really, you know, I want others to also know, because कितनी बार होता है लोग अपनी family को इतना rely नहीं करते हैं. So how you know, because you've always used your grandfather as your, you know, mentor and sounding board. So how was his contribution to your stuff? अगर आप बताना चाहेंगे. I think most of it has been because of him. Right from the beginning, गर्मियों की छुट्टियों में बाहर नहीं जाने देते थे, मतलब नानी के घर जाते थे तो मेरा लिमिटेड टाइम था कि एक हफ्ता ही जाना है। वापस आके मैथ सॉल्व करते थे हम सारा दिन, और भी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव करी उन्होंने मेरी। तो और ऐसा था कि 5th क्लास में 6th क्लास की बुक्स ले आते थे NCERTs की। ही हैड बीन अ टीचर, और वो कहते थे टीचर का दो ही काम होता है, या तो वो खुद पढ़े या पढ़ाए, तीसरी एक्टिविटी में ही गेट्स बोर्ड। तो उन्होंने वो चीज, वो जो पढ़ाने वाली चीज थी, वो सारी मेरे ऊपर करी कि मैं जब भी बोर हूँ मैं पढ़ा दूं। कभी कभी ऐसा लगता था कि और बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा, बट वो चीज मिली कि खेलने का भी समय मिला, लेकिन इट हैज बीन वेरी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट ऑल्सो। जब मेरा मूड नहीं होता था पढ़ने का, दादाजी गुस्सा करते नहीं थे, बट उनके चेहरे से दिख जाता था दैट ही इज एंग्री नाउ। तो मुझे भेज देते थे कि तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो तुम जाओ। फिर दूसरी बार मैं मन के साथ आती थी। तो ये इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। ही यूज्ड टू मेक माय मॉक टेस्ट, जो मेंस में मेरा मेन वेपन रहा है। कि जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, क्लास टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो खुद से अपना पेपर सेट करते थे पहले, और 7-8 पेपर सॉल्व करवाते थे मेन पेपर से पहले। तो आई थिंक बिकॉज ही इज टीचर हिमसेल्फ, तो एक वो फैक्टर भी था कहीं ना कहीं। दूसरा, वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं आज भी। एट द एज ऑफ 74-75 he reads devotes a lot of time of his schedule to newspapers, to news, all India radio and everything. So this has been something which was incultured in me. It was not it so इस तरह ही मेहनत करने की आदत इतनी हो गई थी कि वो इवेंचुअली और बढ़ती गई, एंड इट वाज नेवर अ बर्डन। इवेंचुअली आई यूज्ड टू, ही हैज, वो फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन शेयर एनीथिंग विद हिम। ही इज सो पोस्ट मॉडर्न, आई वुड से,
दैट आजकल मतलब मेरे पेरेंट्स भी इतने ओपन, इतने पोस्ट मॉडर्न नहीं है जितने वो हैं. तो यस, ही हैज बीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर मी. तो अभी भी मैं बोल रही थी, मेंस में भी जो मॉक्स कई बार क्वेश्चन का आंसर वो बिना ऑप्शंस के बता देते हैं. तो यस, एक जैसे कई कई लोग मेरे दोस्त कहते भी हैं कि प्रिपरेशन में हम अकेले चले गए थे या हम एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे, पीयर ग्रुप नहीं था. लेकिन मेरा पीयर ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स, ही फिल्ड ऑल, मतलब उन सबका वैक्यूम जो था उन्होंने भर दिया था ऑलमोस्ट. तो फैमिली पे रिलाई करना, देखिए मेरे हिसाब से, इफ यू बिलीव इन सम सुपर पावर, ऑलमाइटी इज एट टॉप, बट देन कम्स योर फैमिली. मतलब आपके माता, जो बच्चे आप कह रहे थे टू बी प्रिसाइज कि कुछ रिलाई नहीं कर पाते, बट इवेंचुअली वी गेट टू नो ईच अदर कि आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी वेल विशर है. तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं तो बच्चों को उस समय गुस्सा लगता है कि मेरी मम्मी ही क्यों स्ट्रिक्ट है और उसकी मम्मी तो स्ट्रिक्ट नहीं है. लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज होगा कि शायद वो स्ट्रिक्ट सही रीजन की वजह से थी, कि आप आगे आपका बनना है, आपका बिगड़ना वो उनके हाथ में होता है. Then comes your teachers in schools, I think. So God, then parents and then teachers. और अभी भी टीचर्स डे गया कल, तो गुरु एक पूरे देश का निर्माण भी कर सकता है और उसके प्रलय में भी. तो आई थिंक नेशन बिल्डर्स की फ्रेटर्निटी है ये. तो आई ऑल्सो अर्ज ऑल योर व्यूअर्स हु आर स्टूडेंट कि आप अपने टीचर्स को भी इक्वल रिस्पेक्ट करें. कि वो डांट मार रहे हैं तो टेक इट पॉजिटिवली. अगर वो तो वो क्योंकि उनका काम ही है पढ़ाना, राइट? तो वो आपको बनाते हैं. एक मूर्ति का आकार जो मिट्टी से आता है वो एक टीचर ही करता है. तो आई थिंक यस, दिस इज इट. नो आई थिंक आपने बहुत सही मतलब बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स बोले. एंड आई थिंक आपको वो चीज एक ही, मतलब आपके ग्रैंडफादर में पेरेंट प्लस टीचर दोनों मिल गया, व्हिच हैज बीन रियली पॉजिटिव. मुझे एक बात बताओ, बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं कि इट्स वेरी टफ फॉर विमेन एक्चुअली, एंड स्पेशली लड़कियों को प्रोग्रेस में छोटी जगहों में, बिकॉज हमारी काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो हमें देख रहे होंगे एंड जो एक्चुअली सोच रही होंगी शायद अपने लिए कुछ करियर बनाना, एंड शायद छोटी जगह में उन्हें वो अप्रोच नहीं मिल रही होगी. तो आपका क्या मतलब पॉजिटिव, बिकॉज आई एम श्योर आपको तो फैमिली सपोर्ट रहा है, बट आपके हो सकती है फ्रेंड्स होंगे जिनको शायद सपोर्ट नहीं मिला हो या कुछ हो. तो how have you seen that small place to big town change, or what do you advise those people how to fight their journey? I had also mentioned these things in other platforms also, and I would say it again. जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज थी उस डिस्ट्रिक्ट में, उस विलेज में जहां से हम आते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने ये चीज देखी कि ओके, माय फैमिली वाज आई मीन थॉटफुल इनफ कि उनको लग रहा था कि एजुकेशन इज important weapon any child, whether boy or a girl, should have, not just for a job but to be a better civilized generation, right? तो वो चीज मैंने देखी कि I mean I'm 24 now, so half of more than half, I think 15-16 years I've been in a village, then we moved to a city, right? तो मैंने गांव में देखा था कि ये डिफरेंस तो होता ही है कि लड़की को एक ये देखा जाता है कि शादी के बाद शी विल गो टू अनदर होम. तो जो मेरी जो बचपन की सहेलियां जो गांव से थी, दे आर मैरिड एंड दे हैव 2 kids एट दिस मोमेंट, माय बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम विलेज. तो मैं एक बार उनके, एक मेरी जो फ्रेंड है पूजा, मैं उसके ग्रैंडफादर से लड़ भी ली थी कि आप इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आगे. बट फिर मेरे फैमिली ने बोला कि यू कैन इंटरफेयर इन अ फैमिली मैटर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सो जस्ट डोंट गो ओवरबोर्ड अबाउट इट. बट ये चीज आज तक मेरे जहन में बसी हुई है कि वही फैमिली या वही थोड़ा सा, वो मेरे लिए इतने खुश होते थे वो दादाजी, वो प्राइज मिला और इतने हमेशा इतने खुश. तो इट डजंट मीन कि ही इज नॉट अवेयर कि एजुकेशन कैन एम्पावर देयर वुमन, लेकिन वो खुद के लिए पता नहीं क्यों वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए. चॉइस आई जस्ट, मैं समटाइम्स ही इज नो मोर, सो मे इज सोल रेस्ट इन पीस, लेकिन मैं आज तक सोचती रही क्या वो was he brave, not brave enough कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए भी वो स्टेप ले सके, या वो उनका सोशल माइंडसेट अभी उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा. बट आई एम स्टिल पॉन्डरिंग अबाउट दोस क्वेश्चंस. एंड
सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो। अभी वो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, तो आज भी मैं उनसे बात करती हूँ कभी कभी, तो लगता है कि वही सेम अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती तो शायद दे कुड हैव बीन इन माई प्लेस, और मे बी इन अदर एनी अदर प्लेस जहाँ पे वो खुद एम्पावर्ड है। तो व्हेन आई टॉक टू देम नाउ, सो दे से कि नाउ दे आर मोर अवेयर कि हम अपने बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं, चाहे हम बेसिक पढ़ के पढ़ा लें। तो वो चीज कहीं ना कहीं खुशी देती है। बट कई बार ये you think a lot about those questions then कि why are not they exercising it? But Haryana में Miss Ruchi, this social mindset is changing so drastically, I would say, कि जब जैसे जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो गांव वाले इतने खुश हुए। some I mean one of them came to me, hold my hand की साइड कि अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं अपने मतलब बच्चों को ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ाऊंगा और लड़कों को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो चीज की एजुकेशन कहाँ से कहाँ आपको ले आती है, वो चीज हम रियलाइज कर रहे हैं लोग और उसको बहुत धरातल पर उतार भी रहे हैं। और वो अवेयरनेस सरकार की तरफ से भी हो रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, या फिर शिक्षा के लिए जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहे हैं। तो वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन थोड़ा और हमेशा देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस रिगार्ड। एंड वुमेन देमसेल्व्स हैव टू कम फॉरवर्ड कि ये नहीं है कि डिफिकल्टी है तो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो हर सिचुएशन में हैंडल करके आ जाती हैं आगे। तो इट इज अगेन बोथ वे। एंड आई थिंक आपको अपने लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इवन मेल्स के लिए इट्स नॉट वेरी इजी दैट दे विल गेट थ्रू। यस, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक एट अ सर्टेन एज, कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कुछ टाइम के बाद, तो आई वुड नॉट कैटेगराइज इट। बट यस, थोड़ा सा तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है जो अभी भी थोड़ा और इक्वलाइज या इक्वल अपॉर्चुनिटी और आपको देनी पड़ेगी। One last question from you is like, you know, आज हमारे इतने सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए भी तैयार कर रहे होंगे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यू हैव बीन अ फर्स्ट अटेम्प्टर इन यू नो इन यूपीएससी, बट काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स लगता है, या फिर यू नो दे आर अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट देयर रिजल्ट्स। So, and while they're preparing, so anything that you would like to motivate or inspire them and share your stuff or learnings? So ma'am, I think for not just for this exam, for anything you want to do in your life, there are certain principles which you have to follow, and I think following those or amending those according to your own personality would ensure that you are on the right track and wherever that track takes you. So first is whether you are truthful to your own, मतलब सच किसी और से नहीं, खुद से आप सच बोल रहे हो या नहीं, कि आपने मान लो कुछ प्लान करा या कुछ डिसाइड करा, whether are you stuck, I mean whether you are sticking to that schedule or not. So self discipline, वो डिसिप्लिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मान लो आज कोई बच्चा 9th का एग्जाम लिख रहा है या सेकंड थर्ड अटेम्प्टर है, तो क्या वो खुद से सच बोल रहा है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क along with repetition, मतलब आप कुछ भी काम या कुछ भी आप देना चाह रहे हो, मतलब वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप एक चीज को बार बार करते हो, डी डे को आपको वही करनी है, तो दैट इज अ वेरी प्लस फैक्टर। तो जो आज बच्चे पेपर लिख रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स जस्ट वन थिंग, लेकिन जो बार बार लिख भी रहे हैं, तो वो अपनी गलती को एनालाइज करें, खुद को इम्प्रूव करें। And also I would use this platform to say it कि consider this exam or any exam for that matter, whether it's for medical or for engineering, because there are a lot of section of students who are preparing so day in and day out for these exams, but consider these exams only as a career option, only as one step in your life. तो उसको आप लाइफ से ऊपर मत कर देना कि आप डिप्रेशन में आ जाओ या आपको फिर वो चीज खाने लग जाए। उससे ऊपर बढ़ के देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो, एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज आई हैड क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट या ऐसा कुछ, बट विश्वास रखिए कि अगर आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत में विश्वास रखेंगे, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ। और क्योंकि दिस देखो, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ नेचर के लॉज होते हैं जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, एंड दिस इज वन लॉ कि आप किसी में मेहनत करते हो तो मेहनत का फल मिलेगा। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट। तो उसमें विश्वास रखें, आगे पढ़ते रहें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ,
माता पिता से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात करें, और जब भी टेंशन हो, फाइंड मेंटर्स, लुक फॉर वीडियोस, लुक फॉर हेल्प एनीवेयर, एंड देन जस्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि एक लर्निंग का प्रोसेस। मेरे लिए ये जर्नी मोर देन अ सक्सेस, इट हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हर दिन कुछ सीखना था, कुछ और पढ़ना था, तो वो क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड विजडम बन जाती है, देन इट बिकम्स अ जर्नी दैट यू एंजॉय, कि वो फिर टेंशन नहीं रहती कि इतनी मोटी मोटी किताबें जल्दी से खत्म करनी है। इट जस्ट बिकम अ जर्नी जो आप इंजॉय करते हो, और उस पर आप किसी किसी भी हद तक जा सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, वो घंटे डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर हैं, हाउ मच यू आर इनटू इट। सो इफ यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस, यू वुड नॉट लुक इन द क्लॉक। और आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, मतलब उसमें स्पोर्ट्स भी हो, उसमें अच्छा खाना भी हो, और उसमें आपकी पढ़ाई भी हो। एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। जैसा बुद्धा ने, जैसे हमारे एरिस्टोट मतलब पुराने थिंकर्स ने बोला है, गोल्डन मीन इज द गोल्डन, मतलब एवरेज। तो आपका हर चीज में एक मध्यम मार्ग, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही मतलब एक्सट्रीम पे ले जाके अपने आप को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दो। सो ए बैलेंस, good nutrition, good health, good sports, with your family support, with your friend support, teacher support, and your own hard work and passion, you can do anything. There is no doubt about it. डेफिनेटली निशा, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, एंड आई थिंक एंड बहुत रेलेवेंट बोली हैं, मतलब बिकॉज आई थिंक वो पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि यू नो डोंट मेक इट एज योर लाइफ, यू नो एंड ऑफ लाइफ थिंग इफ यू नॉट अचीव्ड। हाँ डेफिनेटली, यू नो भगवान ने आपके लिए शायद कुछ और सोचा होगा, कुछ और अच्छा सोचा होगा, शायद इसलिए ये एग्जाम नहीं हो रहा होगा या कोई चीज नहीं हो रही होगी, बट यू शुड। Very, very nice. I think, Nisha, thanks a lot for your time. It's really appreciable to kind of find time for us and help, our viewers understand about you and also about how to crack such exams. So, really appreciate. And to all our viewers, thanks for joining in, and stay connected with Radio Dwarka, and we will keep sharing with you many such more stories about the UPSC candidates and how they have gone through their own journey.